anterior to which? Orbital septum, molar muscle, orbicularis, levator aponeurosis. लेवेटर एपिन्यूरोसिस। और पोस्टीरियरली इसके क्या प्रेजेंट होता है? ऑर्बिटल सेप्टम। Two vertebral arteries join to form basilar artery. This is called end-to-end anastomosis, convergent, divergent. Best cell of sample for HeLa matching prior to renal transplant is buccal smear, bone marrow, renal tissue, white blood cells. Oxygen delivery to tissue decreased by cyanide poisoning, carbon monoxide poisoning, anemic hypoxia, stagnant hypoxia. ठीक है. In male, breast secretion and gynecomastia is produced by estrogen, progesterone, prolactin, thyroid hormone. Fastest regeneration occur in kidney, spleen, liver, intestine, lungs. Liver carcinoma is caused by benzidine, aflatoxin, hydrocarbons, arylamines. A pregnant lady of third trimester having unchanged LH, cortisol, PTH, estrogen growth hormone. Metabolic acidosis caused by which one of the following? Aldosterone, furosemide, thiazide, spironolactone, carbonic anhydrase inhibitors. Amniocentesis can't be done before 20 weeks, 10 weeks, 15 weeks, 8 weeks. Internal spermatic fascia is derived from external oblique, internal oblique, fascia transversalis, transversus abdominis, superficial fascia. How anterior hypothalamus regulate temperature? By sweating, vasodilation, by shivering, vasoconstriction, piloerection. ठीक है. Body cavity divided into ventral and dorsal. Which one of these is the dorsal? Cranial, abdominal, thoracic, pelvic, abdominopelvic. Bone marrow biopsy is done by ventral, iliac crust, pubic, ischiopubis, ischial tuberosity. ठीक है. While performing bronchoscopy with structure visualized beyond the crina is upper lobe bronchus, superior segmental bronchus, apical bronchus, medial lobe या inferior lobe bronchus, upper lobe. Most sensitive test for screening of SLE is anti-Smith, anti-phospholipid, anti-double stranded DNA और ANA. Gene alteration in carcinoma of pancreas is APC, BRCA2, KRAS, BCL2. Ribosome consists of DNA, RNA and protein, lipids and nucleus. Which one of the following is the confirmatory test for HIV? PCR, Western blot, smear, CBC. Which drug safe in liver decompensation disease? Diazepam, oxazepam, fentanyl, phenobarbital, lidocaine. ठीक है. oxazepam. Dorsalis pedis is terminal branch of tibialis posterior, popliteal tibialis anterior, femoral. Tibialis anterior. Ventricular filling in which ECG segment? TP segment, QT, ST, QRS. TP. क्लार्क न्यूक्लियस की रूट वैल्यू क्या होती है? T1 to L3, T6 to T9, S1 to S2, T1, T3, L3 to L5. During inspiration, what decreases? Systolic hypertension, right ventricular pressure, left ventricular contraction, thoracic arterial pressure. ठीक है. Fatty diet increases which one of these? Glucagon, secretin, CCK, insulin, somatostatin. CCK. चलें अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. पेपर नेक्स्ट स्टार्ट करें. पेज नंबर 377, पेपर 21 आज इंशाल्लाह हमारा एंड हो जाएगा. ठीक है. फर्स्ट एमसीक्यू से मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एट्रियल मैक्सोमा क्या होती है? लेफ्ट एट्रियम. सेकेंड एमसीक्यू प्रेग्नेंट लेडी प्रेजेंटेड विद रूमेटिक फीवर. तो रूमेटिक फीवर के अंदर कौन सा वॉल के अंदर आ रहा होता है? माइट्रल स्टेनोसिस ग्रेटर देन एओटिक स्टेनोसिस. ठीक है. ये आपको पता होना चाहिए कि रूमेटिक फीवर के साथ कौन सा हार्ट मर्मर आता है. A patient known case of mitral stenosis having irregular pulse. Most common finding JVP के अंदर क्या आती है? Absent A wave. ठीक है. Pregnant lady with complaint of DVT at 8 weeks. Which drug can be given safely? तो pregnant में हम कौन सी drugs देते हैं DVT के लिए? IV heparin. Patient presented with paroxysmal fever, chills, time duration for symptoms appear was 36 to 48 hours. Ring जब भी crescent shape चांद की तरह के
ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? प्लाज्मोडियम फल्सीपैरम। पेशेंट डिवेलप एब्डोमिनल टेंडरनेस गार्डिंग आफ्टर फीवर। तो जब भी फीवर के साथ गार्डिंग आए, एब्डोमिनल टेंडरनेस है, तो आपने आंखें बंद करके क्या चूज़ करना है? टाइफाइड विद इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो गई है, ठीक है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिलायबिलिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? एक्सटेंट टू विच अ प्रोसीजर कैन गिव रिपीटेड रिजल्ट्स। Patient presented with joint symptoms, low grade fever and a screen was done but that was negative. आपने इसमें हाईलाइट क्या करना है? एंटी आर एन पी एंटीबॉडीज वाज पॉजिटिव, ठीक है। अपने पास ना हाईलाइटर रख लिया करें, क्योंकि इतनी लंबी लंबी स्टेटमेंट होती है। जब आप सबसे एंड में हाईलाइट करते हैं ना, मैं तो ऐसे करती थी, एक सिनेरियो में से ना अपने हाईलाइटेड पॉइंट आपने हाईलाइट कर लेने, ठीक है। नेक्स्ट टाइम बस आपने वो अपने माइंड में रख के उस क्वेश्चन को आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 5 to 6 लाइन का अगर एक सिनेरियो है तो आप उसे वन वर्ड की वर्ड बस आप वो बार बार रिवाइज करेंगे और इस तरह आपका आई थिंक 10 सेकंड में एक एमसीक्यू जल्दी से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो एंटी आरएनपी एंटीबॉडीज किस में पॉजिटिव आती है? मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के अंदर। सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कौन बना रहा होता है? प्लेसेंटा। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन मेंटेन करा होता है? कॉर्पस ल्यूटियम। ट्रैवलर्स डायरिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? डाइफेनॉक्सिलेट। स्ट्रक्चर विच पासिस थ्रू द एसोफेगियल ओपनिंग ऑफ डायाफ्राम क्या चीज़ पास करी होती है? राइट वेगस, और ये T10 के लेवल से पास करती है। बेस्ट डायग्नोस्टिक लैब टेस्ट फॉर इन्फेक्शन बाय स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हिमोलिटिकस इज कैसे करते हैं? थ्रोट कल्चर इज ग्रेटर देन ब्लड कल्चर, ठीक है। और इनिशियल टेस्ट क्या करवाते हैं? ASO टाइटर करवाते हैं। 13 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकली मैलिग्नेंट ट्यूमर कौन सा होता है? बेसल सेल कार्सिनोमा इज ग्रेटर देन एम्ब्लियोब्लास्टोमा, ठीक है। 14 a female with sign and symptoms of hyperprolactinoma was diagnosed with pituitary adenoma. The growth of this tumor anteriorly किस चीज़ को कंप्रेस करेगी? वो ऑप्टिक नर्व को। लेटरली किस चीज़ को कंप्रेस करेगी? कैवर्नस साइनस को। इंफीरियरली क्या प्रेजेंट होता है? स्फीनॉइड एयर साइनस। ऊपर क्या पड़ा होता है? सुपीरियरली ऑप्टिक क्याज्म। 15 a young girl uses contact lenses presented to OPD with redness and itching eye. Her cornea is inflamed. Her contact lens is water sent for culture which organism. जब भी अब इसमें आपने हाईलाइट क्या करना है? कॉन्टैक्ट लेंसेज। एक पेशेंट थी, उसने कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए थे, उसकी वजह से आइस के अंदर सिम्टम आ रही है, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है? अकेंथ अमीबा। 16 अच्छा, ये हमने किया हुआ है कि जब भी एथलीट, आपने इसमें हाईलाइट क्या करना है? एथलीट्स को। एथलीट्स के अंदर क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होता है, ठीक है। हमारा एमसीक्यूज रिवाइज हो गए क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, तो बार बार हम उस पर दोबारा अपना टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। 17 रिगार्डिंग स्पाइनल कॉर्ड लीजन एट C7। तो C7 के लेवल पे क्या होगा? कॉन्ट्रालैटरल साइड पे पेन और टेम्परेचर जो है बिलो द लेवल ऑफ लीजन लॉस हो जाएंगी, ठीक है। नर्व कंप्रेशन C5 एंड C6 के दरमियान कौन सी होती है? C6 होती है। ए पेशेंट हैज़ लंग CA कैल्सिफिकेशन एंड नोड्यूल, तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है? ईसेंट्रिक होता है। पर्सन विद डिफिकल्टी इन स्वेलिंग ऑन एंडोस्कोपी देयर वाज सम वाइट कलर की ग्रोथ है इनसाइड द इसोफेगस और सूडो हाइफी। आपने आंखें बंद करके क्या लगाना है? कैंडिडा। कैंडिडा का इन्फेक्शन होता है जो सूडो हाइफी होती है और वाइट कलर की ग्रोथ होती है, ठीक है। रीनल कंपनसेशन फॉर हाइपरकैलीमिया, तो वो क्या कॉज करवा देता है? एसिडोसिस कॉज करवा देता है। लिगामेंट इंजर्ड ऑन हाइपर एक्सटेंशन, जब आप नेक पे हाइपर एक्सटेंशन का मतलब है आप अपनी नेक जो है वो बैकवर्ड मूव हो रही है, तो आपका एंटीरियरली वाला जो लिगामेंट, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है सारा, ठीक है। तो एंटीरियरली लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट जो है वो इंजर्ड हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा मैं अपनी नेक की फ्लेक्शन करूँ, फोर्सफुल एक्सटेंशन ऑफ द नेक, तो कौन सा लिगामेंट इंजर्ड होगा? लिगामेंट ऑफ नकी, अल्फा ऑप्शन, वेरी गुड। वाइट ब्लड सेल को एंडोथेलियम के साथ कौन सी चीज़ कनेक्ट करती है? आईकेम। द हाइड्रोजन एंड पोटाशियम पंप इन पेराइटल सेल को कंट्रोल कौन करता है? पोटाशियम ATPase। हुकवर्म इन्फेक्शन ही माइक्रोस्कोपिक फीचर प्रेजेंट ऑन पेरिफेरल ब्लड स्लाइड विल बी, ठीक है। तो वो कौन से होते हैं? स्पेक्टिकल शेप बाइलोब न्यूक्लियर, ठीक है। हुक के जो डबल ओ है ना, उसके साथ आप उसे आप ग्लासेस की शेप में एक बना रहे हैं, ठीक है। इस तरह आपको जब भी आप हुकवर्म को ही देखेंगे ना, तो आपको उसके साथ ग्लासेस याद आ जाएंगी। ग्लासेस से आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? स्पेक्टिकल शेप बाइलोब न्यूक्लियाई, ठीक है। 26 40-year-old hypertensive man had thalamic hemorrhage. The most prominent finding on the examination of his sensory system will be, कौन सा है? हाइपोथैलेमस में सारी सेंसेशन है ना, अगर उसका इंजरी हो जाती है तो पेशेंट को हाइपर एस्थीजिया, मतलब उसे सेंसेशन ज़्यादा फील होंगी, ठीक है।
विच वन डायरेक्टली कंट्रोल ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स सिस्टम ऑफ द बॉडी, कौन कंट्रोल कर रहा होता है? हाइपोथैलेमस। क्लिम्बर एट हाई आल्टीट्यूड एक्सपीरियंस हाइपोथर्मिया, तो अभी हमने बात की हुई, आपने इसमें भी हाइपोथर्मिया को हाईलाइट कर लेना। हाइपोथर्मिया जो है, अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएँ या विंटर्स वाले में, तो कौन सा हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है? पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। वो क्या जनरेट करता है? हीट जनरेट करता है, सिंपैथेटिक को एक्टिवेट करता है, शिवरिंग करवाता है। अगर आप बहुत सारे हॉट टेम्परेचर, अगर आप एक पेशेंट को एक्सपोज होता है हॉट टेम्परेचर में, तो कौन सा पार्ट एक्टिवेट होगा? एंटीरियर हाइपोथैलेमस, और वो पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करके कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवाएगा। ठीक है। 29, ए पेशेंट प्रेजेंट विथ थ्रोबिंग हेडेक। ठीक है। और ESR रेज्ड है, तो ये किसके अंदर होता है? जॉइंट सेल आर्टराइटिस के अंदर। ठीक है। इसमें जब आप बायोप्सी करवाते हैं तो आपको नज़र आ जाता है कि जो उसकी आर्टरीज के अंदर इस तरह एबनॉर्मेलिटी हुई होती है, फिल्म होती है वो बहुत ज़्यादा। A patient presented with diarrhea, petechiae and thrombocytopenia and also having raised creatinine with raised unconjugated bilirubin caused by। ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के साथ ये सारी चीज़ें आ रही हैं, जो कौन सा है? TTP का स्नैरियो है। प्रेग्नेंट फीमेल हैज़ डाइट लेकिन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो अगर आप नहीं खाएंगे तो किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाएगी? किस विटामिन की डेफिशिएंसी होती है? फोलेट। वेरी गुड। तो फोलिक एसिड अगर आप नहीं लेती एक पेशेंट, और ना ही वो टैबलेट भी नहीं खा रही, तो उसका जो बेबी होगा वो क्या होगा? एनेन्सेफली। उसमें न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट्स आएंगे, या उसका जो हेड है या CNS है वो प्रॉपरली बनेगा ही नहीं। इसीलिए हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या देते हैं? फोलिक एसिड की टैबलेट्स देते हैं। पेशेंट विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम विथ स्ट्रक्चर इन ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन प्लेज ए मेजर रोल इन सेलेक्टिविटी फॉर द प्रोटीन्स, तो उसमें कौन सी लेयर होती है? लेमिना रेरा एक्सटर्ना। ठीक है। जो अंदर वाली लेयर होती है बहुत ज़्यादा। विच ट्यूमर इन्वॉल्व्स एक्सटेंशन टू द नर्व शीट, ये एज इट इज़ आता है MCQs। ठीक है। नर्व शीट की जो एक्सटेंशन वाला ट्यूमर कौन सा है? कार्सिनोमा, एक्सप्लियोमॉर्फिक एजिनोमा। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इज सप्लाइड बाय, कौन सी ब्रांच सप्लाई कर रही होती है पैरोटिड ग्लैंड को? अच्छा, ये आप कोई भी एग्जाम देंगे ना इस स्टेज के ऊपर आके, ठीक है, तो उसमें से एक MCQ लाजमी होता है कि कोई भी ग्लैंड होगा जो फेस के सारे है ना, सारे गैंग्लियंस और जो ग्लैंड्स है, उसकी उसने या तो प्री वाली पूछ लेनी है कि प्री साइन, जो एक अबव होती है, एक प्री होती है, एक पोस्ट होती है, ठीक है, उसको सप्लाई करी होती है जो नर्व। तो एक MCQ इस तरह का वो लाजमी पूछते हैं आपसे, ठीक है, जो फेस के सारे गैंग्लियन, जैसे टेरिगोपैराटाइन गैंग्लियन है, ये वो सारे, ठीक है, तो आपने इनकी अच्छे से नर्व सप्लाई आपको पता होना चाहिए। ठीक है। फंक्शन ऑफ फोर्थ क्रेनियल नर्व ऑन द आई मूवमेंट इज, कौन सी होती है? हमने बात की थी, ट्रोक्लियर नर्व होती है और ये सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करती है, और इसके फंक्शन में जब ये आइस को एबडक्ट करती है और ये सारा कुछ करके कौन किस पोजीशन में आ जाती है? इंफीरियर लैटरल पोजीशन में। ठीक है। अभी मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन ग्रुप में सेंड कर दी थी। ए पेशेंट ABG रिवील pH उसकी इंक्रीज है 7.54 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 ऑलमोस्ट नॉर्मल है, बाइकार्बोनेट भी रेज्ड है 29 है। इसका मतलब है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू जो है वो रेज्ड नहीं हुई, ठीक है, इसका मतलब है अनकम्पनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, ठीक है, क्योंकि pH अभी नॉर्मल पे वापस नहीं आई तो अनकम्पनसेटेड होगा। 37 प्रोमिनेंट फीचर ऑफ डिस्प्लेजिया, इसे क्या कहते हैं? कि सेल जो है उसने अपनी लॉस ऑफ पोलैरिटी एंड आर्किटेक्चर। इन एक्सरसाइज व्हाट हैपन, एक्सरसाइज में क्या होता है? टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है ताकि एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल्स की ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाए। मेल एंड फीमेल पेशेंट डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स देन सब ग्रुप, आपको ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, इसको कौन सी रिसर्च में आती है? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है। ग्रुप के आगे फर्दर सब ग्रुप है ना, तो स्ट्रेटिफाइड आ जाएगी, और आपने रैंडमली उस ग्रुप में चूज़ करे हैं सारे, ठीक है, तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग आ जाएगी। 40 ए पेशेंट प्लीज। अच्छा, इसमें ना आपने क्या करना है, AA के भी जो आई थिंक थोड़े से 100 MCQs हैं या बहुत कम है, ठीक है, कम्युनिटी मेडिसिन और जो बिहेवियर साइंसेस वाला पोर्शन है, और सिर्फ 1 या 2 पेजेस के ऊपर उसके सारे AA के पल्स पॉइंट दिए हुए, ठीक है, और रफ़ी के ऊपर भी लास्ट में आई थिंक 4 या 5 पेजेस हैं, ठीक है, तो ये एक दिन के अंदर कवर हो जाते हैं, कम्युनिटी मेडिसिन और बिहेवियर साइंसेस। ठीक है। आप अपना कोई एक डे, जैसे संडे वगैरह कोई भी फ्री होता है ना आप, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि कम्युनिटी मेडिसिन और बिहेवियर साइंसेस, इसमें से 5 MCQs तो कन्फर्म आते हैं, ठीक है, और एक MCQs रिसर्च में से भी आना होता है। तो जो मतलब डिटो चीज़ें ना, आपको पता है कि ये तो एग्जाम में आनी है, तो एटलीस्ट उनका आप अपनी ग्रिप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखें उस पर, ठीक है। तो आई थिंक 2-3 घंटे में आपका ये वाला टॉपिक प्रिपेयर हो जाता है, तो ये भी आपने अच्छे से कर लेना है। ए पेशेंट प्रेजेंटेड विथ इंटरनल फीमेल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल मेल जेनिटेलिया शो एड्रिनल कोर्टिकल हाइपरप्लेसिया, ठीक है, तो इसमें कौन सा आता है? तो कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी है? 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है।
ये कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया का सिनेरियो है सारा। पेशेंट इज टेकिंग वारफेरिन एंड स्टार्टेड टू ब्लीड, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट? तो आप ट्रीटमेंट उसे क्या देंगे? विटामिन के देंगे, ठीक है। इमीडिएटली उसे FFP देंगे और लॉन्ग टर्म में क्या देंगे? विटामिन के। अच्छा, पोस्टीरियर टू द थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, ठीक है। एंटीरियरली उसके कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं थर्ड पार्ट के? सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स एंड स्मॉल बाउल मेसेंट्री। और पोस्टीरियरली उसके क्या होते हैं? राइट यूरेटर होता है, राइट सॉस मसल होता है, इंफीरियर वेना cava एंड एओर्टा, ठीक है। आपको ये चारों इसके कंटेंट याद होने चाहिए, ठीक है। वो एंटीरियर का भी क्वेश्चन आ सकता है, पोस्टीरियर का भी, या ये तो पार्ट्स है ना, वो आपको फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पार्ट तीनों में से कोई भी दे सकता है। और इसके सुपीरियरली क्या प्रेजेंट होता है? हेड ऑफ पेंक्रियाज, और इन्फीरियरली कॉइल्स ऑफ जेजुनम पड़ी होती है। 43 फीमेल विद हार्ट डिजीज, डाउनवर्ड ट्रैक्शन ऑफ हर एवी एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स कांट बी मेड विद स्ट्रक्चर इज डैमेज। कौन सा डैमेज हो गया? कोडा टेंडनाई। 44 ए पेशेंट विद लोकलाइज सर्कमफ्रेंशियल सब एंडोकार्डियल लेटरल वॉल का इन्फार्क्ट है। तो लेटरल वॉल इन्फार्क्ट में कौन सी आर्टरी होती है? लेटरल सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। और ये हमने कल भी रिवाइज किया था, लीड 1 आ जाएगी, AVL एंड V5 एंड V6। ब्लड ब्रेन बैरियर कौन बना रहा होता है ब्रेन में? कैपिलरी एंडोथेलियम। ए यंग बॉय विद कंप्लेन ऑफ फेशियल एसिमेट्री, रोलिंग ऑफ स्लाइवा फ्रॉम माउथ, इनएबिलिटी टू क्लोज हिज आईज, ठीक है। हिस्ट्री प्रिवेल्स क्रॉनिक नेजोफ्रेंजियल साइनोसाइटिस, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज, ठीक है। तो फेशियल पाल्सी है, ड्रोलिंग ऑफ स्लाइवा सजेस्टिंग, तो ये किस में होता है? डिफ्थेरिया के अंदर, कुराइनोबैक्टीरिया डिफ्थेरिया के अंदर। लार्जेस्ट सेल इन ब्लड इज विच अमंग द फॉलोइंग, तो सबसे लार्जेस्ट कौन से होते हैं? मोनोसाइट्स, ठीक है, ब्लड के अंदर। अब आपने इसको मिक्स नहीं करना मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है। तो आपने देखना है कि वो किस जगह की बात करें। ब्लड के अंदर सबसे बड़े कौन से होते हैं? मोनोसाइट्स, और कुछ डेज के बाद वो फिर मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और बोन मैरो के अंदर कौन से होते हैं? मेगा कैरियोसाइट्स। ओवरऑल की अगर बात की जाए तो मेगा कैरियोसाइट्स ग्रेटर देन मोनोसाइट्स, अगर वो आपको सेल या टिश्यू की बात ना करें, ठीक है, अगर आपको ओवरऑल जनरल टर्म में बात करें। MHC का फंक्शन क्या होता है? ये इम्यून रिकॉग्नाइज करती है। 49 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर विद ट्यूमर म्यूटेशन, ठीक है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट, अब मैंने आपको कहा था कि आपने इन चारों की एग्जांपल्स अच्छे से याद करनी है और लास्ट डे पे आपने इसे रिवाइज भी करना है, ठीक है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर क्या आ जाती है? फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस। Patient was diagnosed to have gout. Which one of the following enzyme could be targeted by allopurinol, ठीक है। तो इसमें कौन सा एंजाइम आता है? xanthine ऑक्सीडेज। ऑटोसोमल डोमिनेंट की दोबारा एक और एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। 52 पेशेंट कंप्लेन ऑफ इनएबिलिटी टू ग्रिप थिंग्स प्रॉपरली एंड थिन आर वेस्टिंग, नर्व इंजर्ड सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? मीडियन नर्व। 10-year बॉय डायग्नोज्ड विद टेपवर्म इन्फेस्टेशन, द ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? नाइक्लोसामाइड। ओपनिंग ऑफ माउथ कौन से होते हैं? लेटरल टेरिगॉइड होते हैं, हमने कल भी सारे मसल्स किए थे। 53 ओल्ड पेशेंट हैड नॉन प्रोडक्टिव कफ 2 months, ठीक है। ये भी हमने कल रिपीट किया था, इसलिए मैं सारा रीड नहीं करी, ठीक है। तो इसमें आपने क्या याद रखना है? सबसे पहले स्मोकिंग, देन रेडॉन, देन एस्बेस्टोसिस, ठीक है। अब आपने बस इतना देख लेना, वो बात कर रहा है नॉन स्मोकर है, तो पहले वाला आपकी प्रेफरेंस तो कट हो गई है, चार्ली ऑप्शन तो कट हो गया है। अब एस्बेस्टोस भी दिया हुआ है, लेकिन एस्बेस्टोस से पहले क्या आता है? रेडोन एक्सपोजर, ठीक है। तो आपने इको चूज़ करना है। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? समझ आ रही है ना? स्पीड वगैरह ज़्यादा तो नहीं है? चलो ठीक है, रिस्पॉन्स साथ साथ करते जाया करें ताकि मुझे पता हो कि ठीक स्पीड से समझा रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज बिहाइंड द ओवेरियन फोसा, ठीक है। उसके पोस्टीरियरली क्या पड़ा होता है? पहले यूरेटर, और यूरेटर के भी पोस्टीरियरली क्या पड़ा होता है? इंटरनल आइलिक आर्टरीज, ठीक है। और एंटीरियरली क्या पड़ा होता है? ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। सुपीरियरली क्या पड़ा होता है? एक्सटर्नल आइलिक वेन एंड आर्टरीज। और इंफीरियरली क्या पड़ा होता है? ऑब्चुरेटर नर्व, आर्टरी एंड वेन। 57 अथीरोस्क्लेरोसिस के अंदर तीनों कंपोनेंट से भी हमने कल बात की थी, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, सेल भी आ जाएंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी आ जाएंगे, और लिपिड्स भी आ जाएंगे, ठीक है, सारे सेल्स आ जाएंगे। 58 पेशेंट विद कंप्लेन ऑफ रिगर्जिटेशन, चेस्ट पेन, मिड नाइट पार्शली रिलीव बाय एलिवेशन ऑफ बेड साइड। तो ये किस चीज़ का डायग्नोसिस क्या बनेगा इसका? GERD। GERD के अंदर आप क्या देते हैं? फैटी डाइट आप उसे कहेंगे डिक्रीज़ करें, और रात को सोने से 2-3 घंटे पहले खाना पीना बंद कर दें, और हेड एलिवेट करने को कहते हैं हम पेशेंट को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ सेरिबेलम डिजीज लीजन, ठीक है। तो उसमें क्या आता है? डिसआर्थरी। ये भी आपने सीक्वेंस वाइज चूज़ करनी होती है, डिसआर्थरिया, डिसमेट्रिया, डिसडायोकाइनेसिया, निस्टिग्मस, ठीक है। जो ऑप्शन सीक्वेंस वाइज आपने देख लेना है। राइट ऑप्टिक ट्रैक लीजन कॉज विच, तो हमने बात की थी कि सेम साइड के नेजल फाइबर्स होंगे, ऑपोजिट साइड के टेम्पोरल, ठीक है। ये आपने वाइस वर्सा आपने कर लेनी है।
थायरोग्लोबिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कौन से सेल्स होते हैं? फॉलिकुलर सेल्स. चाइल्ड प्रेजेंट विद एब्डोमिनल पेन विद डायसेंट्री, स्टूल कंटेंट पस एंड रेड ब्लड सेल. पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है? एंटेरोहेमरेजिक ई कोलाई. 63 यंग मेडिकल स्टूडेंट होल्डिंग 3 बुक्स. ये भी हमने पहले किया हुआ है, ठीक है. तो अब अगर मैंने पहले भी 3 बुक्स है, अगर मैं उसके और ज़्यादा फोर्स अप्लाई करूँगी तो आपका जो टेंडन है उसे रप्चर होने के चांसेस होंगे ना. तो बॉडी क्या करेगी? एक इन्वर्स स्ट्रेस रिफ्लेक्स उसी टाइम एक्टिवेट करेगी जो उसे इनहिबिट करेगी फर्दर फ्लेक्शन को, ताकि मसल की रप्चर ना हो जाए. तो वो कौन कैरी करवा रहा होता है? गोल्जी टेंडन, ठीक है. इसे कहते हैं डायसाइनेप्टिक होता है ये. स्ट्रेस रिफ्लेक्स मोनोसाइनेप्टिक होता है, इन्वर्स स्ट्रेस रिफ्लेक्स डायसाइनेप्टिक होता है, फ्लेक्सर या विड्रॉल ये एक ही नाम होता है, ये मल्टीसाइनेप्टिक होते हैं. इसमें से हमने काफ़ी सारे एमसीक्यूज आ जाते हैं इसमें से, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में से. आर्टरी पाल्पेटेड बिटवीन ट्रेकिया इंफ्राहेड. अच्छा, ट्रेकिया के साथ कोई भी और बात करें तो आपने कौन सी आर्टरी को चूज़ करना है? कॉमन कैरोटिड आर्टरी. अक्सर ना मसल चेंज करते रहते हैं, तो ट्रेकिया और जो सारे इस तरह के हेड बोन के साथ वाले जो मसल्स होते हैं इनके दरमियान से कौन सी आर्टरी पास कर रही होती है? कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है. आपको पता है कि नेक में से मेन ये आर्टरी सप्लाई पास कर रही होती है. अडीमा फ्लू ड्यू टू इन्फ्लेमेशन कौन सा होता है? एक्सुडेट. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडाइजेपिन क्या करती है? पोटेंशिएशन ऑफ गाबा. घबराहट से आपने याद रख लेना कि बेंजोडाइजेपिन हम एंजाइटी की पेशेंट्स को देते हैं ना, ठीक है. तो पोटेंशिएशन इसका मैकेनिज्म क्या है? गाबा. गाबा को ये पोटेंशिएशन करवाते हैं, ठीक है. ए लेडी प्रेजेंटेड विद फीवर एंड जो ऑब्सेस्ड विद ड्रेनिंग साइनस एंड येलो कलर के ग्रेन्यूल्स हैं, तो वो कौन से होते हैं? एक्टिनोमाइसीड्स. एंटीबायोटिक्स फॉर बैक्टीरियोइड्स फ्रेजाइलिस कौन सी होती है? क्लिंडामाइसिन. 69 लाइट चेन इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है. तो वो किसके साथ एसोसिएटेड होती है? सिस्टेमिक अमाइलोडोसिस. सेकेंडरी oocyte complete their secondary meiotic division at the time of fertilization, ठीक है. उससे पहले वो क्या होता है? फर्स्ट meiotic division के टाइम पे वो ओवुलेशन के टाइम पे वो प्राइमरी oocyte होता है, ठीक है. और उसके बाद फर्टिलाइजेशन के टाइम के ऊपर वो क्या होता है? सेकेंडरी oocyte होता है. फिर फर्टिलाइजेशन अगर हो जाए तो उसके बाद अपनी वो सेकेंडरी meiotic डिवीजन से आगे फर्दर करवा रहा होता है, ठीक है, डिविजन्स. 71 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिलेटेड टू लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा? सिस्टिक हाइग्रोमा. और इसके साथ कौन सी कंडीशन आती है? टर्नर सिंड्रोम, ठीक है. हार्मोन विच एक्ट थ्रू IP3 मैकेनिज्म के साथ कौन सा एक्ट कर रहा होता है? GnRH. डिक्रीज ऑक्सीजन इन द ब्लड इज सेंस्ड बाय, ठीक है. तो हमने बात की थी कि जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं उसके रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? एक एओर्टा के अंदर प्रेजेंट होता है और दूसरा कैरोटिड बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है. ये हमने हार्ट के अंदर CVS के अंदर कल हम इसे रिवाइज कर चुके हैं सब कुछ. हाँ जी. इन सिफिलिसिस VDRL डायग्नोस्ड कैसे करते हैं? 6 and 12 मंथ्स पे. ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड किस पे करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट्स पे. टू प्रिवेंट ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन ऑफ HIV ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? ज़ाइडोवोडिन. Patient has given injection penicillin after which he developed shortness of breath, bronchoconstriction. What should be immediate drug to be given for penicillin allergy? कौन से देते हैं? IM epinephrine या IM adrenaline. और ये टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी में देंगे. स्ट्रक्चर इन पोस्टीरियर मीडियास्टम में कौन सा होता है? डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा. हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टैक्स किस में होते हैं? काइलोमाइक्रोन के अंदर. बेसल बॉडी को कौन बना रहा होता है? सेंट्रियोल. पर्सन इज हैविंग हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग ड्रिंकिंग फ्रॉम मैनी ईयर्स. एंडोस्कोपी. मिडल थर्ड ऑफ इसोफेगस को कौन सप्लाई कर देते हैं? अपर फर्स्ट और सेकंड को. कौन से कार्सिनोमा थे? स्क्विमस सेल. और लोअर 1/3 को कौन सा कार्सिनोमा होता है? लोअर 1/3 ऑफ, वेरी गुड, एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है. और इसकी फैक्टर में बताएं कि मोस्ट कॉमनली इसमें कौन सी प्री मेलिग्नेंट कंडीशन एसोसिएटेड होती है जिसमें एपिथेलियम का चेंज आता है? वेरी गुड, बैरेट इसोफेगस, ठीक है. ए पेशेंट विद, और आपने भी देखना है उसमें एपिथेलियम चेंज हो रही होती है. ए पेशेंट विद माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया प्रेजेंट विद स्पून शेप नेल किसके अंदर आते हैं? आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में. ऑटो रेगुलेशन ऑफ GFR कैसे करवाते हैं? ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू. 84 ए यंग मैन प्रेजेंट विद चेस्ट पेन डिजनिया फिजिशियन एडवाइस एक्सरे चेस्ट. विच पार्ट इज कोस्टो कार्टिलेजिनियस इन एक्सरे चेस्ट? कौन सा होता है? कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट. फ्रैक्चर ऑफ हेड ऑफ फीमर लीड टू एवस्कुलर नेक्रोसिस. तो इसकी ब्लड सप्लाई कौन सी होती है? मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी. और बच्चों में कौन सी होती है? ऑब्चुरेटर आर्टरी. मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन PCT में किस चीज़ की होती है? ग्लूकोज की और अमाइनो एसिड्स की 100% एब्जॉर्प्शन हो जाती है. बाकी सबकी सोडियम और वाटर की कितनी होती है? 67%, ठीक है. इन पेशेंट विद एम्फाइसीमा के अंदर क्या हो जाता है? लंग वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है.
फर्स्ट स्ट्रक्चर इनकाउंटर्ड बाय बुलेट आफ्टर piercing द चेस्ट वॉल मसल विल बी, कौन सा होता है? सबसे पहले फेशिया प्रेजेंट होता है, एंडोथोरेक्सिक फेशिया डैमेज होता है। ड्रग वाया ओरल रूट हैविंग एक्वस एब्जॉर्प्शन किस चीज़ की होती है? डायजॉक्सिन। बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, कौन सा पोर्शन होता है? FC पोर्शन होता है। हाइपोक्सिक वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन अकर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किस में होती है? लंग्स के अंदर होती है, ठीक है, बाकी सब के अंदर ऑपोजिट होता है। लॉस ऑफ अकोमोडेशन रिफ्लेक्स, तो कौन सा एरिया डैमेज होता है? सेरिब्रम, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, और बाकी सब में सेरिब्रल कॉर्टेक्स होते हैं, ठीक है। और लेकिन अगर लॉस ऑफ अकोमोडेशन के साथ आपको बात की जाए कि थर्ड नर्व की भी पालसी हो गई है, तो कौन सा एरिया ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व है? एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस या मिड ब्रेन के अंदर रीजन आ रही है। 93 पेशेंट हैविंग स्टेमी एंड देयर इज एलिवेशन इन द लीड 2-3 AVF, तो कौन सा MI है? इंफीरियर वॉल MI, जिसको कौन सी आर्टरी सप्लाई करी है? राइट क्रोनरी आर्टरी। पेशेंट इज ऑन द लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड थेरेपी, तो उसमें अब क्या डेवलप हो जाएगा? लिम्फोपीनिया हो जाएगा, इओसिनोपीनिया हो जाएगा और न्यूट्रोफिलिया हो जाएगा। टॉल लाइक रिसेप्टर्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है, आप इसे अपनी लेटम में याद रख सकते हैं। इन्नेटॉल, हम कहते हैं ना कि ये तो बहुत बड़ा है या बहुत लार्ज इन साइज है, तो इन्नेट का आप फर्स्ट वर्ड याद रखिए, ये बहुत बड़े हैं, इन्नेटॉल, ठीक है। A female is of 36 week pregnant having low alpha fetoprotein, low estriol, she is having, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें ना मिक्स हो जाती हैं कि अल्फ़ा फिटोप्रोटीन लो है या ज़्यादा है, ये जब आप पेपर में बैठते हैं ना तो ये चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो ये आपने अच्छे से छोटी छोटी चीज़ों पे आपने अपना रिवीजन कर करके ना उन्हें स्ट्रॉन्ग करना है। अल्फ़ा फिटोप्रोटीन भी लो है, एस्ट्रायोल भी लो है, तो ये किस में होती है? डाउन सिंड्रोम के अंदर, ठीक है। न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स आफ्टर सर्जरी इज़ ड्यू टू हेमरेज की वजह से पेशेंट हाइपोवॉल्मिक शॉक में चला जाता है। ग्लूकागॉन डिक्रीजेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किस चीज़ को डिक्रीज करता है? फैटी एसिड्स को डिक्रीज, कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ अकर्ड, व्हाट चेंजेस विल अकर, ठीक है, तो वो क्या कर देता है? ब्रेन में जाके वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी सेरिब्रल आर्टरी की, ठीक है, तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड सप्लाई ब्रेन की डिक्रीज हो जाएगी। 100 ए पेशेंट प्रेजेंटेड विद इंजेक्शन ऑफ समथिंग ड्राउजिक, माइल्ड डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेशन ऑन ड्यूटी, डॉक्टर मैनेज इट विद एंटीडोट, इसका क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, व्हाट ही हैज़ इंजेस्टेड। अच्छा, मुझे ये बताएं, जिसमें इको ऑप्शन दिया हुआ है मॉर्फिन, ये तो सवेयर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करता है, और स्नैरियो में दिया हुआ है माइल्ड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, तो इसका करेक्ट आंसर है चार्ली फिनोबार्बिटॉन, ठीक है। 101 ए पेशेंट प्रेजेंट विद हाइड्रोसेफलस विद डायलेटेड वेंट्रिकल्स, व्हाट आर सेल्स दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन सेल्स फ्रॉम द फ्लूइड, कौन से सेल्स प्रोटेक्ट करते हैं? हमने भी बात की थी, ब्लड ब्रेन बैरियर कौन बनाता है? एंडोथीलियम। 102 ए 30-year-old फीमेल पेशेंट हैज़ प्रेजेंटेड विद एनेस्थ्यूरिया, इसे कहते हैं डायलेटेड यूरिन, मतलब बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड होता है वो। द फॉलोइंग विल इंडिकेट ए डिफेक्ट ऑफ ट्यूबुलर कंसंट्रेशन मैकेनिज्म, ठीक है, तो उसमें क्या है? हाइपोनेट्रीमिया या लो यूरिनरी सोडियम, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड है ना। विच पोर्शन ऑफ अपर GIT ट्रैक हैज़ इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल, किस में होता है? मिडल पार्ट ऑफ द इसोफेगस के अंदर ये एनाटॉमी होती है, ठीक है। यहाँ तक सारे MCQs क्लियर हैं। चलिए नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं, पेपर 22, जो हमारा सेक्शन 4 का लास्ट पेपर है। फर्स्ट कहते हैं 25-year-old male with complaint of shortness of breath, X-ray show a large shadow in the chest, on echo it was related to right ventricle of the heart containing hemorrhagic and necrotic area, तो इसका ऑप्शन आप मुझे बताएं कि इराटा इसके अंदर अल्फा दिया हुआ है या डेल्टा दिया हुआ है, क्योंकि हेमरेजिक और नेक्रोटिक एरिया एंजियोसार्कोमा के साथ एसोसिएटेड होता है राइट वेंट्रिकल में। ये इसका ऑप्शन अल्फा है, किसी को इसका थोड़ा आइडिया है? आवाज़ क्लियर आ रही है? अच्छा, चलिए आप लोगों ने ना ये वाला MCQs थोड़ा इराटा जो आपके पास लेटेस्ट है ना, तो उसमें आपने देखना है कि इसका ऑप्शन अल्फा दिया हुआ है या डेल्टा दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ग्रुप के अंदर भी आप लोगों ने ना शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, अगर किसी को कंफर्म होता है तो। इम्पोर्टेंट फाइंडिंग एट द एंगल ऑफ लुईस पे क्या होता है? इस पे ओपनिंग होती है, इराटा नहीं है, SK 1 to 17 का है इराटा, आई थिंक सो। इराटा वैसे सब SK का होता तो है वैसे, मतलब अच्छा ये वाला क्वेश्चन उसमें नहीं दिया हुआ, चलिए ठीक है, देख लेते हैं फिर इसका। अच्छा, तो एंगल ऑफ लुईस के अंदर कौन कौन सी चीज़ पास कर रही थी? इसमें ओपनिंग होती है एजाइगस वेन की इन द सुपीरियर वेना केवा के अंदर, ठीक है।
एक्यूट मेमोरी लॉस ड्यू टू विच एरिया डैमेज, कौन सा एरिया उसमें डैमेज हो जाता है मेमोरी लॉस की वजह से? लिम्बिक एसोसिएशन एरिया कॉर्टेक्स, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस के साथ सारी मेमोरी सेंटर एसोसिएटेड होते हैं ना यार, लिम्बिक एसोसिएशन कॉर्टेक्स। जॉइंट सेल टीबी के अंदर कौन से होते हैं? लैंगरहैंस सेल्स। 5 डायज़ेपियम रिलैक्सेस स्केलेटल मसल बाय एक्टिंग ऑन, किस पे एक्ट करते हैं? इंटरन्यूरॉन्स पे। फीमेल प्रेजेंट विद वीकनेस इन द लेग्स अपॉन एमआरआई बायलैटरल इंफार्क्ट इन द फ्रंटल लोब ट्रैक इन्वॉल्व, कौन सा होता है? कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। इन द स्केलेटल मसल कैल्शियम किसके साथ बाइंड करता है? कैल्सिक्वेस्ट्रिन के साथ। और स्मूथ मसल में किसके साथ बाइंड करता है? अल्फा ऑप्शन के साथ, कालमोडुलिन के साथ। 8 पेशेंट ब्रॉट टू ER अनकॉन्शियस, देयर इज ब्रीदिंग प्रॉब्लम, एम्प्टी बॉटल ऑफ एस्पिरिन, तो इसका एंटीडोट क्या है? अच्छा, इसमें बात ये है कि आप उसे हाउ एंटीडोट विल एक्ट, ठीक है। तो हमने कोई ऐसी ड्रग देनी है जिसकी वजह से इसका बॉडी से एक्सक्रीट ज़्यादा हो जाए, ठीक है। इंक्रीज ट्यूबुलर एक्सक्रीशन ऑफ एस्पिरिन, हमने उसे बॉडी से एक्सक्रीट करवा देना है, ठीक है। लेसर ओमेंटम किसके साथ अटैच होता है? ड्यूडिनम के साथ। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? पेक्सिनियन कॉर्पसल्स की 512 हर्ट्ज या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, इस पर एक्टिवेट हो जाते हैं ये। पेन, टेम्परेचर एंड क्रू टच वाले कौन से होते हैं? एंटीरियर लेटरोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। और फर्स्ट ऑप्शन में DCML में क्या आ जाएंगे? फाइन टच, प्रोप्रियोसेप्शन एंड वाइब्रेशन। गन शॉट वूंड टू द एंटीरियर चेस्ट आफ्टर क्रॉसिंग इंटरकोस्टल मसल, विच स्ट्रक्चर विल इट फर्स्ट कम इन कॉन्टैक्ट विद, किसके साथ आता है? एंडोथोरेसिक फेशिया, ये भी रिपीटेड है। फर्स्ट साइन ऑफ हाइपरवाइटामिनोसिस ए में क्या साइन आता है? केराटाइटिस हो जाएगा या जॉन्डिस आ जाएगा पेशेंट में। हाइपरवाइटामिनोसिस कहते हैं उसकी टॉक्सिसिटी होगी है बहुत ज़्यादा। और अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो तो आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे? डेफिशिएंसी हो जाए, देन चार्ली, नाइट ब्लाइंडनेस। IgE किससे रिलीज होता है? मास्ट सेल से। टेक्निक यूज टू डिटेक्ट एबनॉर्मल एंड माइक्रो डिलेशन ऑफ क्रोमोसोम, इसे कहते हैं फिश। ये सारा जो बायोकेम दी हुई ना फर्स्ट एड के अंदर, ये वहाँ ये सारी टेक्निक्स दी हुई हैं, ये वहाँ से इस तरह के MCQs आते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन रिजल्ट इन हॉर्नर सिंड्रोम, तो उसमें बेसिकली क्या होगा? पेशेंट को सबसे पहले ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड, सबसे पहले उसकी आंख गिर जाएगी, देन एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग ऑन द अफेक्टेड साइड, ठीक है। बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, अगर बीटा ऑप्शन में नहीं है तो आप अल्फा भी चूज कर सकते हैं। व्हाट इज द मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ऑफ जॉर्डन सिंड्रोम, से क्या डेवलप हो जाता है? बी सेल लिम्फोमा। A patient presenting with keratitis, xerostomia and joint pain is most likely suffering from, तो क्या डेवलप हो जाएगा? सुजॉर्जन सिंड्रोम। इसमें क्या क्या आ जाता है? कैरेटोकंजक्टिवाइटिस, सीका, जीरोस्टोमिया एंड रूमाटॉइड आर्थराइटिस। साइक्लोस्पोरिन किसके ऊपर एक्ट करती है? एक्ट्स बाय स्टॉपिंग करती है T सेल डिफरेंशिएशन पे, ठीक है। क्लार्क न्यूक्लियस की वैल्यू क्या होती है? T1 से L2 तक होता है इसका लेवल। ए पेशेंट इज हैविंग रेस्टिंग ट्रेमर, तो रेस्टिंग ट्रेमर किस में आता है? पार्किंसनिज्म में, और उसमें कौन सा इन्वॉल्व होता है? सस्टेंशिया नाइग्रा, और न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है? डोपामिन। हिस्टोलॉजी ऑफ मैकुला डेंसा क्या होता है? डीप बेसल लेमिना के साथ। ओल्ड एज पेशेंट कंप्लेन ऑफ डिफिकल्टी इन रीडिंग नियर थिंग्स एंड अकोमोडेशन इशू, तो ओल्ड एज के अंदर जाके ना क्या होता है? प्रेस बायोपिया डेवलप हो जाता है, लेंस का जो कर्वेचर होता है ना वो लॉस हो जाता है। एओटिक प्रेशर कितना होता है? मैक्सिमम 80 mm। कल हमने बात की थी, जब इसके ऊपर जब इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा रेज्ड होता है तो कौन सी नोच आती है ECG के अंदर? उसे कहते हैं डाइक्रियोटिक नोच, डाइक्रियोटिक नोच, ठीक है। और पल्मोनरी वाल्व का प्रेशर हाईएस्ट कितना होता है? 8 mmHg। और एट्रियम का प्रेशर कितना होता है रेज्ड? ये हमने कल किया था, वो भी कितना होता है? 8 mmHg रेज्ड होता है, ठीक है। विच इज थ्रोम्बोलिटिक एजेंट कौन सा होता है? प्लाज्मिन। ए मैन लिफ्टेड हैवी वेट, सडन पेन इन आर्म ऑन एग्जामिनेशन, स्वेलिंग इन द अपर फोर आर्म ऑफ द मसल, कौन सा मसल है जो रेडियल ट्यूबरोसिटी के साथ अटैच होता है? बाइसेप ब्रेकियाई। सुपिनेशन ऑफ आर्म इज डन बाय विच मसल बिसाइड सुपिनेटर, तो बाइसेप ब्रेकियाई ये सुपिनेशन करवाता है। वॉटी लेजन कॉज्ड बाय ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, क्या कॉज करवाता है? कोंडाइलोमा। फंक्शनल रेमिनेंट ऑफ मेसोनेफ्रिक डक्ट, मेल के अंदर क्या बनाती है? डक्टस डेफरेंस। बॉडी ब्लड सप्लाई ऑफ अपर 2 सेंटीमीटर ऑफ द ड्यूडिनम, कौन सी सप्लाई होती है? राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। और ये किसकी ब्रांच होती है? राइट गैस्ट्रिक आर्टरी? हेपेटिक की, ठीक है। चलिए ठीक है।
30 तो जो सारा जो सिलिक प्लेक्सिस है ना, आपने इसकी ब्लड सप्लाई ना बहुत अच्छे से कर लेनी है रिवाइज एक दफ़ा, ठीक है। जो आप जीआईटी करेंगे ना फर्स्ट एड से, तो इसकी आपको ब्रांचेस सारी पता होनी चाहिए। 31 एट सी डाइवर्स आफ्टर डाइविंग असेंड रैपिडली देन डेवलप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड जॉइंट पेन। तो उसकी कॉज क्या होगी? नाइट्रोजन बबल। आर्टरी प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पैरामिड कौन सी होती है? आर्कुएट आर्टरी। अपसेस इन द प्रीवर्टेब्रल फेशिया। अच्छा, जब भी प्रीवर्टेब्रल फेशिया हो ना, तो ये कौन से मीडियास्ट्रम के साथ कनेक्ट करी होती है? सुपीरियर मीडियास्ट्रम के साथ, ठीक है। एंटीरियर टू वर्टेब्रल बॉडी। और एक और एमसीक्यूज आता है, अगर आपको याद हो तो, रेट्रोफ्रेंजियल अपसेस जो होता है वो किस में ड्रेन करता है? कौन से मीडियास्ट्रम में ड्रेन करा होता है? प्रीवर्टेब्रल फेशिया। पोस्टीरियर मीडियास्ट्रम के अंदर। अच्छा, अच्छा ये अभी आप पोस्टीरियर किसका बता रहे हैं? इसी ऑप्शन का 33 का। प्रीवर्टेब्रल। अच्छा अच्छा, हाँ जी, जो रेट्रोफ्रेंजियल है ना, रेट्रोफ्रेंजियल अपसेस में प्रीवर्टेब्रल में, ठीक है। और इसका बीटा ऑप्शन है, ठीक है। सुपीरियर मीडियास्टम एंटीरियर टू वर्टेब्रल बॉडीज, ठीक है। टेस्ट विच रूल आउट के लिए कौन सा होता है? सेंसिटिविटी। और रूल इन के लिए कौन सा होता है? स्पेसिफिसिटी, ठीक है। और जो सेंसिटिव होते हैं वो ट्रू पॉजिटिव होते हैं, और जो स्पेसिफिसिटी होती है वो ट्रू नेगेटिव होते हैं, ठीक है। 35 एन ओबीस पेशेंट बियर्स ए टाइट कॉलर। जब भी आप किसी की टाइट कॉलर का मतलब है उसकी, ठीक है, फील टाइटनेस इन द कॉलर, फेंट व्हेन एवर ही टर्न्स हिज हेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो उसके लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है? वीनस कॉम्प्लाइंस इंक्रीज हो जाती है। ए स्टूडेंट ऑफ फाइनल ईयर एमबीबीएस विटनेस सर्जरी फॉर द फर्स्ट टाइम कोलैप्स इन द ओटी। क्यों? वेजोवेगल शो की वजह से। ईसीजी के अंदर अगर यू वे वाई इन्वर्टेड टी वे वाई, तो किस में होता है? पोटाशियम जब डिक्रीज हो, हाइपोकैलेमिया। डेफिशिएंसी इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज हाइपर एक्साइटेबिलिटी। कौन कॉज करवाते हैं? कैल्शियम। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज्ड बाय, जब बाइकार्बोनेट डिक्रीज हो जाते हैं। राइट एट्रियम इन्फार्क्शन इन्वॉल्व्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग। किसको इन्वॉल्व करता है? पैक्टिनेट मसल्स को। पल्स दैट अक्यूमुलेट्स इन बॉयल्स और अपसेस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ न्यूट्रोफिल्स। विच कंडीशन इज रिलेटेड टू एओसिनोफिलिया। कौन किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं? एस्थमा के साथ। और इसमें हाइपर, चलिए छोड़े। पेशेंट हैज ब्लीडिंग प्रॉब्लम ड्यू टू मैस ऑन द लेटरल साइड ऑफ स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल विच वेसल इज ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग को किस आर्टरी से होती है? सबक्लेवियन आर्टरी से। व्हाट विल बी इंक्रीज इन विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सा एंजाइम रेज्ड हो जाते हैं? एएलपी। इन द ट्रीटमेंट ऑफ सब अरेक्नोइड हेमरेज कौन सा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं? निमोडिपिन, ठीक है। बोन स्कैन किस कार्सिनोमा के लिए नेसेसरी होते हैं? रेटिनोब्लास्टोमा के लिए। और इसे हम सीएसएफ भी करवा रहे होते हैं एग्जामिनेशन। मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर कार्सिनोमा एचआईवी और एड्स के पेशेंट में कौन सा होता है? कैपोसिस सार्कोमा, एचएसवी 8 पेशेंट हैवी ट्रैवलर्स डायरिया नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एंटी डायरियल ड्रग। विच ड्रग शुड बी गिवन, कौन सी हम देते हैं? नॉरफ्लॉक्सासिन। फ्रैक्चर ऑफ टीरियन विच आर्टरीज में डैमेज कौन सी होती है? मिडल मेनिंजियल आर्टरी। An unmarried female with parotid swelling and no lymph node enlargement. Which type of biopsy is used for parotid swelling in this case? तो वो कौन सी होती है? एस्पायरेशनल बायोप्सी। गॉबलेट सेल क्लारा सेल में अब कन्वर्ट होते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के ऊपर, उसके बाद गॉबलेट सेल्स होते हैं आगे फर्दर। Patient after RTA having 8% blood loss in 30 minutes with no change in arterial pressure. Which one of the following has maximum loss of blood? किससे होता है? वेन्स के थ्रू। नेक्स्ट एमसीक्यूज में सारा कुशिंग सिंड्रोम का सारा स्नैरियो है, तो वो कहते हैं कि हम उसे सिंपल ओबेसिटी से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। इसमें कुशिंग में एब्डोमिनल स्ट्राया प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, या फिर प्रॉक्सिमल मायोपैथी हो जाती है। डायजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है अगर हम कौन सी ड्रग पेशेंट ले रहा हो? क्विनिडीन, ठीक है। और डायजॉक्सिन इटसेल्फ क्या कॉज करवाती है? हाइपरकैलेमिया। और डायजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी इंक्रीज कब होती है? हाइपोकैलेमिया में, अल्कोलोसिस में, या हाइपोमैग्नीसीमिया में। 55 वुमन विद अ हिस्ट्री। अच्छा, सेम साइड की जब भी टंग की प्रोट्रूजन हो, इसका मतलब है सेम साइड की हाइपोग्लॉसल नर्व की इंजरी है। 56 ये पेशेंट हैड आरटीए। ही डज नॉट नो रिसेंट इवेंट बट ही रिमेंबर हिज स्कूल इवेंट। मतलब अब वाली मेमोरी से याद नहीं है लेकिन बचपन की याद है। तो ये कौन से लॉस है? हिपोकैम्पस डैमेज हो गया है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाया फॉस्फोलाइपेज के थ्रू कौन सा एक्ट करता है? ऑक्सीटोसिन. A pathologist see on slide that neutrophils are utilizing oxygen burst oxygen reaction was seen in which step it is necessary. तो उसमें बेसिकली क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स की माइक्रोबैक्टीरियल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. इन ए पेशेंट लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन आफ्टर आरटीओ व्हाट इज द अंडरलाइंग. अगर मैकेनिज्म की बात की जाए तो लेटरल इनहिबिशन होती है, और अगर ट्रैक की बात की जाए तो डीसीएमएल ट्रैक होता है. पेशेंट की बोथ आइज कवर्ड दैट लुक्स टुवर्ड द साइड ऑफ लीजन हॉरिजॉन्टल. जब भी आइज टूवर्ड्स द साइड ऑफ लीजन हो तो इसमें कौन सा डैमेज होता है? लीजन है फ्रंटल आई फील्ड के अंदर. और अगर अवे फ्रॉम द साइड होती है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन में तीनों ने दी हुई है. तो अगर इंट्रा न्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लेजिया आते हैं तो कौन सा डैमेज कहाँ किसके अंदर होता है? मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस के अंदर डैमेज आ रहा होता है, ठीक है. और अगर आइज लुक अवे फ्रॉम द साइड ऑफ द लीजन, तब लीजन किसके अंदर आ रहा है? पैरामीडिया पोंटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन के अंदर आ रहा है, ठीक है. तो ये आपने देख लेना है कि जो सिम्टम है पेशेंट के वो कहाँ दिए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने ऑप्शन को चूज कर लेना है. 61 नेक्रोसिस विल हैव. नेक्रोसिस में किस टाइप की कैल्सिफिकेशन होती है? डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन. सून आफ्टर एक्साइटेशन देयर विल बी कपलिंग ऑफ. किस चीज़ की कपलिंग होती है? क्रॉस लिंकेज हो जाता है एक्टिन का मायोसिन के साथ. 63 मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी इन एडल्ट ह्यूमन कौन सी होती है? आईजीजी. ट्रिप्सिन एक्ट ऑन विच अमाइनो एसिड पे एक्ट करती है? टर्मिनल कार्बोक्सी ग्रुप अमाइनो एसिड. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली कंट्रोल ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स सिस्टम ऑफ द बॉडी. कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस. थेराप्यूटिक विंडो ऑफ ड्रग किस चीज़ को इंडिकेट करती है? अफेक्टिव ब्लड कंसंट्रेशन को. डोज किस चीज़ को शो करती है? पोटेंसी को, इंडेक्स सेफ्टी को, और विंडो रेंज को. पेशेंट आफ्टर आरटीए लॉसेस 2 लीटर ऑफ ब्लड विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल अकर. अब क्या हो जाएगा? वीनस टोन उसकी इंक्रीज हो जाएगी. इन द लास्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में रेस्पिरेटरी चेंजेस क्या आते हैं? FEV1 ओवर FVC डिक्रीज हो जाता है. ये भी मैंने आपको ग्रुप पे शेयर किया हुआ कि रेस्पिरेटरी चेंजेस सीक्वेंस वाइज क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है. ए वुमेन टेस्ट पॉजिटिव और CA-125, तो ये किसका मार्कर है? पैंक्रिया ओवेरियन कार्सिनोमा का, सॉरी, ठीक है. A boy had a car accident after which he is bedridden. He developed DVT. He came to ER with chest pain and dyspnea. What will be the finding? तो finding क्या होगी? Ventilation perfusion mismatch. Graves disease में कौन सी एंटीबॉडी रेज हो जाती है? इंक्रीज DSI. फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन किस चीज़ को इनहिबिट करते हैं? NADPH ऑक्सीडेज को. तो इसका ऑप्शन है अल्फा, ठीक है. रीनल पार्ट विच रन्स फ्रॉम रीनल कॉर्टेक्स टू मेडुला बिटवीन द रीनल कॉलम क्या चीज़ होती है? रीनल पैरामिड्स होते हैं. सर्वाइकल कार्सिनोमा में फोर्थ ग्रेड अगर कार्सिनोमा है तो कौन से लिम्फ नोड इन्वॉल्व होंगे? इंटरनल आइलिक एंड इंटरनल आइलिक. CCK को इनहिबिट कौन करता है? सोमैटोस्टैटिन. विच वन रिलेटेड टू पोस्ट सेंट्रल गायरस के साथ सेंसरी होती है और प्री सेंट्रल गायरस के साथ मोटर होती हैं. इन हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म देयर इज क्या होता है? इंक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी. ट्रिगर्स एंड एंटी हिलेक्स इज कहाँ से ड्राइव होता है? फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से. IgE एलर्जिक रिएक्शन को प्रिवेंट कौन करा होता है? एंटीहिस्टामिन्स. लिम्फ वेसल इन्वॉल्व इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें किस चीज़ के साथ इन्वॉल्व होते हैं? कैवर्नस हीमेंजियोमा के अंदर. मसल दैट इज अटैच टू मोर देन वन जॉइंट एंड प्रिवेंट एक्सेसिव मूवमेंट, इसमें कौन से होते हैं? फिक्सेटर्स. ये भी मैंने आपको डबल ए के अंदर जनरल एनाटमी के अंदर पहला टेबल दिया हुआ है, आपको पिक्चर शेयर की हुई है, ठीक है. इन सब की डेफिनेशन एग्जाम में आती है. Which one of the following structure lie deep to and parallel to the carotid sheet? कौन सी होती है? sympathetic chain. True about thermoreceptors, ये इनका large receptive field होती है. crescent glomeruli कौन बना रहा होता है? parietal cells के साथ अक्सर neutrophils का ऑप्शन भी आता है. इन megaloblastic anemia there is damage किस में आता है? parietal cells में. इन gynecomastia defect किस में आ जाता है? इन galactosemia there is defect किस में आता है? galactose 1 phosphatase uridyl transferase के अंदर. 87 विच वन कॉज सिवियर स्टीरोरिया कौन कॉज करवाता है? पेंक्रियाटिक रिसेक्शन. फर्स्ट लाइन मैक्रोफेज ऑफ डिफेंस लंग के अंदर कौन सी होती है? डस्ट सेल. इन 19-year-old स्टूडेंट केम टू यू विथ फीवर, सोर थ्रोट, इन लार्ज टॉन्सिल लिम्फेडिनोपैथी फ्रॉम लास्ट 1 week. दिस इज कौन सा होता है? स्टेफ फ्रेंजाइटिस. इन स्किन डैमेज विच लेयर ऑफ स्किन विल फर्स्ट रीजनरेट, कौन सी होती है? स्ट्रेटम बेसेल. बिहेवियर चेंजेस आर प्रोड्यूस्ड इन सोसाइटी बाय पीयर सीडर, यानी कि जो आपके फ्रेंड सारा सर्कल होता है और जिस सोसाइटी में आप रहते हैं. मीन इन लार्ज सैंपल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कराते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को. विच लिम्फॉइड ऑर्गन हैज़ पैराक्राइन एक्शन किसका आता है? थाइमस का.
ठीक है। ये जब आप एंडो करेंगे, एंडो की फिजियोलॉजी के अंदर आपने सारा देखने का पैराक्राइन एक्शन कौन सा है, न्यूरोक्राइन कौन सा है, इस तरह वाले सारे। ठीक है। मैक्सिमम एओटिक प्रेशर कार्डिक साइकिल में कब आता है, रिड्यूस इजेक्शन ग्रेटर देन रैपिड इजेक्शन। ठीक है। और मिनिमम कब होता है, आइसोपोलमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर एओटा का मिनिमम होता है और वेंट्रिकल का हाईएस्ट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एक्टिवली सिक्रेटेड, किडनी से कौन सी एक्टिवली सिक्रेट हो जाती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इंक्रीज इन मीन आर्टीरियल प्रेशर क्या कॉज करता है, इंक्रीज इन टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। मोस्ट कॉमन साइड रिब की कहाँ फ्रैक्चर होती है, एंगल ऑफ रिब के ऊपर। द डिवीजन ऑफ द बैक्टीरियल प्लेक्सिस आर प्लेस्ड डीप टू, किसके डीप होते हैं, क्लेविकल के। और इसे डिवाइड कौन सा मसल कर रहा होता है, डेल्टा पैक्माइनर। पेशेंट हैविंग क्रोनिक गैस्ट्राइटिस डेवलप अल्सर ड्यू टू एच पाइलोराई स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया क्या कॉज करवाता है, पॉलीसाइथीमिया या एमआई। नॉर्मली फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा क्या होती है, प्रिवेंट मैटरनल एंड फीटल ब्लड मिक्सिंग। मदर आरएच पॉजिटिव है, फादर नेगेटिव है, तो आरएच जो एंटीजन है वो डिलीवरी के दौरान जब ब्लड थोड़ा सा ट्रांसफ्यूजन होती है तो क्या होगा, आरएच एंटीजन जो है वो मदर के अंदर आ जाएगी और वो एंटीबॉडीज़ के साथ रिएक्शन करके हिमोलिसिस कॉज करवाएगी और जो सेकंड प्रेगनेंसी में वो मतलब रिएक्शन कॉज करवाती है। ठीक है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस डेवलप हो जाएगा। ए पर्सन रनिंग इन ए मैराथन रेस, ब्लड फ्लो टू द नॉन एक्सरसाइजिंग मसल में कौन सी सप्लाई होती है, सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक। हेयरिंग ब्यूरो रिफ्लेक्स विल लीड टू इनहिबिशन किसकी करवाते हैं, डोर्सल न्यूरॉन ऑफ सेंट्रल रिस्पायरेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज में क्या आता है, लीवर का साइज इंक्रीज हो जाता है, हेपेटोमेगाली एंड हाइपोग्लाइसीमिया। ये भी आपको मैंने टेबल सेंड किया हुआ है, आपने करना है। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज और लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज, एक पेज है सिर्फ। ठीक है। व्हाट हैपन्स इन वूपिंग कफ, वूपिंग कफ में क्या हो जाता है, हाइपरप्लेजिया हो जाता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकस का। क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व बोथ किस चीज़ को सप्लाई करती है, मोटर सप्लाई ऑफ मसल्स को। ड्रग विच हैज़ मोर क्लियरेंस देन इनुलिन, तो वो कौन सी होती है, फिल्टर्ड एंड सिक्रीट हो जाती है वो ड्रग। एंटीरियर स्टेनोकोस्टल सरफेस ऑफ द हार्ट को कौन बनाती है, राइट वेंट्रिकल। फोलेट लेवल चेक्ड इन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बाय रेड ब्लड सेल, फोलेट लेवल करवाते हैं। सरफेक्टेंट प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड, किस में इंक्रीज होता है, डीप ब्रीदिंग के अंदर। चाइल्ड डायग्नोज विद जेनेटिक कॉज ऑफ हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, फादर आल्सो हैव सेम प्रॉब्लम, तो डिफेक्ट किसके अंदर आता है, एलडीएल के रिसेप्टर्स के अंदर। ठीक है। यहाँ तक सारे एमसीक्यूज क्लियर हैं सबको। चलिए रिवाइज करते हैं 2 मिनट में, फिर हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। Posterior to the third part of duodenum is right kidney, inferior vena cava, liver, head of pancreas, lesser sac. Most common site of atrial myxoma is कहाँ होता है, right atrium, right ventricle, superior vena cava, left atrium, anterior wall. Source of estrogen and progesterone last trimester में कौन बनाता है, placenta, ovary, corpus luteum, chronic villi, adenohypophysis. Which one directly control autonomic reflex system of the body, thalamus, hypothalamus, cerebrum, cerebellum, pons. Largest cell in the blood, which among the following, basophil, megakaryocyte, neutrophil, lymphocyte, monocyte. Posterior to third part of duodenum is, अच्छा ये हमने कर लिया है। Edema fluid due to inflammation is exudate, transudate, serous, fibrinous. Exudate. Which among the following is a sign of cerebellum lesion, resting tremor, synergism, dysarthria, hypertonia, increased reflexes. Dysarthria. In patient with emphysema, which one of the following is appropriate, decreased TLC, increased TB, increased lung volume, decreased residual volume, increased lung volume. Drug via oral route having aqueous absorption is digoxin, phenobarbital, diazepam, carbamazepine. Acute memory loss, which one of the area is damaged, Broca area, Wernicke area, limbic association cortex, prefrontal cortex, cortical association area. Which one is thrombolytic agent, fibrinogen, plasmin binding to ADP receptors, fibrin. What will increase in vitamin D deficiency, ALP, phosphorus, LDH, AST. Deficiency in which one of the following cause hyperexcitability, sodium, potassium, calcium, phosphate. Necrosis will have metaplasia, metastatic discalcification, dystrophic calcification, atrophy.
Which one of the following act via phospholipase, prolactin, oxytocin, ACTH, FSH, aldosterone? In megaloblastic anemia, there is damage of chief cell, serous cell, mucous cell, parietal cell. Drug which has more clearance than inulin will be filtered only, secreted, filtered and secreted, absorbed. Charlie. Anterior to the heart is formed by anterior surface कौन बनाता है? Right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. राइट वेंट्रिकल. अच्छा ये बताएं कि आज कौन सा टॉपिक है हमारा डबल ए और इसका फर्स्ट एड का? GIT 64. अच्छा आप बताएं कि GIT के अंदर सिक्रीशंस को कौन सा प्लेक्सिस कंट्रोल कर रहा होता है? ऑरिबैक प्लेक्सिस या मीजनर प्लेक्सिस? मीजनर्स. और मोटिलिटी को कौन कंट्रोल करता है? मोटिलिटी को कौन कंट्रोल करता है? ऑरिबैक प्लेक्सिस या माइंटेरिक प्लेक्सिस? इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को कौन सा हार्मोन इंक्रीज करवाता है? CCK, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन. बाइल सिक्रेशन को कौन सा हार्मोन इंक्रीज करवाता है? गैस्ट्रिन, CCK, सिक्रेटिन. अच्छा ये जो मैं बात कर रही थी ना पैराक्राइन एंडोक्राइन, ये GIT के अंदर ही आ गए हैं. ठीक है, तो आई होप आपने ये कर लिए होंगे. अच्छा बताएं कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स किसके थ्रू करते हैं? एंडोक्राइन, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, न्यूरोक्राइन? ऑटोक्राइन. वेरी गुड. एसिटाइलकोलिन एक्ट्स वाया एंडोक्राइन, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, न्यूरोक्राइन? न्यूरोक्राइन. थायराइड हार्मोन किसके थ्रू एक्ट करते हैं? एंडोक्राइन, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, न्यूरोक्राइन? एंडो. और VIP और एपिनेफ्रिन इज एक्ट वाया न्यूरोक्राइन. पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस को इनहिबिट कौन सा हार्मोन करता है? पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को सोमैटोस्टैटिन. Short chain fatty acids are absorbed in colon, jejunum, ileum, duodenum. Low absorption of long chain fatty acid is in colon, jejunum, ileum, cecum, jejunum. Substance inhibited by low pH. कौन इनहिबिट कर रहा होता है? गैस्ट्रिन, CCK, कोलिसिस्टोकाइनिन या सोमैटोस्टैटिन? गैस्ट्रिन. फैट डाइजेशन इज डन बाय. कौन करवाता है फैट डाइजेशन? किस मैकेनिज्म के थ्रू होती है? मैकेनिज्म का नेम बताना आपने. इमल्सिफिकेशंस. ठीक है. स्लो वेव द स्टमक बिगेन्स फ्रॉम. किस सेल से स्टार्ट होती है स्लो वेव? इंटेस्टाइन के कजाल सेल. वेरी गुड. ये भी MCQ एग्जाम में आया था. थिक स्लाइवा के अंदर कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? थिक स्लाइवा इन्वॉल्व्ड. कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? α1 एंड β1. प्रोस्टाग्लैंडिन फंक्शन इन द स्टमक. क्या करवाता है प्रोस्टाग्लैंडिन? पेराइटल एसिड सिक्रेशन को इंक्रीज करवाता है या डिक्रीज करवाता है? डिक्रीज करवाता है. नॉर्मल वेव्स कितनी बनती हैं पर डे? बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम्स ऑफ द स्टमक कितनी होती हैं? 2, 3, 5, 6, 3. पाइलोरस अगर रिमूव कर दें तो क्या चेंजेस आती हैं? सॉलिड्स इजीली पास कर जाएंगे. अगर हम फंडस को रिमूव करते हैं सर्जिकली तो क्या चेंजेस आएंगी? कंप्लाइंस इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है. और अगर एंट्रम को रिमूव कर दें तो गैसिड एसिड प्रोडक्शन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है. इंक्रीज स्लाइवरी फ्लो कौन सी नर्व कैरी करवा रही होती हैं? 5, 7, 9 या 10? इंक्रीज स्लाइवा का फ्लो कौन करवाता है? 7 ग्रेटर देन 9. वेरी गुड. इंक्रीज स्मॉल इंटेस्टाइन मोटिलिटी एंड डिक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी कौन सा हार्मोन करवाते हैं? CCK, सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन? CCK. स्लाइवा बताएं स्लाइवा कैसा होता है? हाइपरटोनिक होता है, हाइपोटोनिक होता है या आइसोटोनिक होता है? हाइपोटोनिक होता है. वेरी गुड. और पैंक्रियाटिक सिक्रीशन कैसी होती है? हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक? वेरी गुड. अच्छा अब आप बताएं कि HCl कहाँ से रिलीज होता है? कौन से सेल से रिलीज होते हैं? GIT के, स्टमक के, पेराइटल सेल? ठीक है. पेप्सिनोजिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच सेल्स? चीफ सेल्स. एंट्रम से कौन सा क्या चीज़ रिलीज होती है?
एंट्रम के अंदर जी सेल्स होते हैं और जी फॉर गैस्ट्रिन। एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स विल रिलीज, क्या चीज़ रिलीज करते हैं? हिस्टामिन। म्यूकस एंड पेप्सिनोजिन आर रिलीज फ्रॉम, कहाँ से रिलीज होते हैं? म्यूकस सेल्स। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? म्यूकस सेल से, ठीक है। चीफ सेल से तो सिर्फ पेप्सिनोजिन प्रोड्यूस होता है ना, म्यूकस कहाँ से प्रोड्यूस होगा? म्यूकस सेल से। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एंट्रम के ऊपर, ठीक है। अच्छा, पेंक्रियाज के डेल्टा सेल से क्या चीज़ रिलीज होती है? पेंक्रियाज के डेल्टा सेल से क्या रिलीज होती है? सोमेटोस्टैटिन। स्लाइवा के अंदर आप ये बताएं कि सोडियम और क्लोराइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है या लो होती है? लो होती है। पोटाशियम और बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन स्लाइवा में ज़्यादा होती है या कम होती है? अच्छा, मुझे एंजाइम्स बताएं कि स्लाइवा के अंदर कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट है जो उसी टाइम फूड की डाइजेशन स्टार्ट करवा देते हैं माउथ के अंदर ही? अल्फा माइलेज, लिंगुअल लाइपेज और कैलिकाइरिन। अगर स्लाइवा का रेट बहुत ज़्यादा है तो उसमें किस चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी? इलेक्ट्रोलाइट्स की आपने बताना है ना। हाईएस्ट किस चीज़ की होगी? अच्छा, पोटाशियम की लोएस्ट होगी और सोडियम और क्लोराइड की ज़्यादा होगी, ठीक है। हाई रेट की अगर हम बात करें ना, अगर उसका फ्लो ज़्यादा है ना, तो सोडियम और क्लोराइड, जो कि नॉर्मली इनकी कंसंट्रेशन कम है, लेकिन अगर स्लाइवा का फ्लो रेट ज़्यादा है तो ऑपोजिट हो जाएगा, पोटाशियम की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और सोडियम और क्लोराइड की ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि स्लाइवा को किस किस कंडीशन के अंदर या कौन कौन सी ड्रग हैं जो स्लाइवा को इनहिबिट कर देंगी? स्लाइवा इज इनहिबिटेड बाय एट्रोपिन, स्लीप एंड डिहाइड्रेशन, ठीक है। चलिए, आई थिंक हमारे जीआईटी फिजियोलॉजी के पॉइंट्स रिवाइज हो गए हैं। अब हम जीआईटी की फिजियोलॉजी रिवाइज करते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे 2 मिनट दे, मैं अपनी फर्स्ट एड का जीआईटी वाला पोर्शन ले आऊँ, ठीक है। चलें, जीआईटी का स्टार्ट करते हैं हम। स्टमी की रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज कितने वीक्स पे जाके वो रोटेट करती है डेवलपमेंट में? 4 to 6 वीक्स, ठीक है। और दोबारा उसकी 270 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज दोबारा जो रोटेशन होती है वो कितने वीक्स पे होती है? 10 वीक पे जाकर, ठीक है। ये एमसीक्यू सारे आते हैं। और जो टंग डेवलपमेंट है ना ऊपर, इसके अंदर से भी बहुत एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। ये तो हमने किया हुआ है कि जो एंटीरियर 2/3 होती है उसे कौन सी सप्लाई करी होती है? एंटीरियर 2/3 को सेंसरी सप्लाई ट्राइजेमिनल होती है और टेस्ट की 7 होती है, ठीक है। और पोस्टीरियर 1/3 को कौन सी सप्लाई करी होती है? नर्व ग्रोसोफ्रेंजियल, और उसके बाद सबसे पीछे वेगस पड़ी होती है, ठीक है। अच्छा, कॉन्जेनिटल अम्बिलिकल हर्निया कौन सी कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर्स के साथ एसोसिएटेड होता है? 2 कंडीशंस के आपने नेम बताने हैं, डाउन सिंड्रोम और कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म के साथ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद डबल बबल साइन किस में आता है? डबल बबल साइन, D फॉर
ड्यूडिनल एट्रेजिया के अंदर, ठीक है। और ट्रिपल बबल साइन किस में आता है? ट्रिपल बबल साइन जेजुनल एंड आइलियल एट्रेजिया के अंदर, ठीक है। अच्छा, अच्छा रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स के आपने नेम बताने हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो रेट्रोपेरिटोनियल होते हैं? इसका निमोनिक्स हेड पकड़, एस फॉर सुप्रारिनल ग्लैंड, ए फॉर एओर्टा एंड इंफीरियर वेना कैवा, डी फॉर ड्यूडिनम, पी फॉर पेंक्रियाज, यूरेटर, कोलोन, किडनी एंड इसोफेगस एंड रेक्टम, ठीक है। ये आपने अच्छे से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपने रिवाइज करते जाने, ठीक है। अच्छा, आप बताएंगे पोर्टल ट्राइएट कौन से हेपेटिक लिगामेंट में प्रेजेंट होती है? फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट, हेपेटोगैस्ट्रिक, सारे लिगामेंट्स में किस में प्रेजेंट होती है? हेपेटोड्यूडिनल के अंदर। और अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो हम किस मैन्यूअर के थ्रू ऑपरेट के दौरान क्लैंप लगाते हैं? उस मैन्यूअर को क्या कहते हैं? प्रिंगल मैन्यूअर, ठीक है। इसके बाद आप बताएं स्प्लेनिक आर्टरी एंड वेन एंड टेल ऑफ पेंक्रियाज आर प्रेजेंट इन विच लिगामेंट? स्प्लिनोरीनल लिगामेंट। और इसकी मिजेंट्री कौन सी होती है? वेंट्रल होती है या डोर्सल होती है? डोर्सल होती है। अच्छा, ये भी आपने तीनों याद करनी है। वेंट्रल मिजेंट्री में क्या क्या आ जाएंगे? फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट और हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट, ठीक है। और डोर्सल मिजेंट्री में 3 आ जाएंगे, गैस्ट्रोकोलिक, गैस्ट्रोस्प्लेनिक और स्प्लेनोरिनल, ठीक है। अच्छा, मीजनर प्लेक्सेस आर प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ द जीआईटी? म्यूकोजा, सबम्यूकोजा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, सिरोजा। सबम्यूकोजा। और माइंटारिक प्लेक्सेस या ओरिबैक प्लेक्सेस आर प्रेजेंट इन विच लेयर? किसमें प्रेजेंट होते हैं? सब मस्कुलरिस एक्सटर्ना के अंदर, ठीक है। प्लाइका सर्कुलरिस आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट? इसोफेगस, स्टमक, ड्यूडिनम, जेजुनम, आइलियम, कोलोन। जेजुनम और आइलियम के अंदर, ठीक है। अच्छा, मिड गट के अंदर कौन सा वर्टेब्रल लेवल होता है? T12, L1, L3 मिड गट के अंदर। L1। और इसकी नर्व सप्लाई कौन सी होती है? नर्व सप्लाई वेगस। और इसकी आर्टरी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, ठीक है। और इसके लेवल तो आपको पता होंगे। अच्छा, आप मुझे वो 3 नेम बताएं जो पोर्टोसिस्टेमिक अनेस्टमोसिस बनाते हैं। कौन कौन से 3 अनेस्टमोसिस बनते हैं जीआईटी के अंदर? इसोफेगस क्या बनाती है? इसोफेगल वेरिसिस। और कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है? लेफ्ट गैस्ट्रिक, ठीक है। और रेक्टम के साथ कौन सा होता है? एनोरेक्टल वेरिसिस। और किसके साथ कौन सी आर्टरी एंड वेन होती है? सुपीरियर रेक्टल। और एक अम्बलाइकल होती है, उसके साथ कौन सी होती है? पैरा अम्बलाइकल, ठीक है। पैरा अम्बलाइकल वेन्स। अच्छा, अच्छा बताएं एक्सटर्नल हेमरॉइड्स पेनफुल होते हैं या नॉट पेनफुल होते हैं? एक्सटर्नल हेमरॉइड्स पेनफुल होते हैं। और इंटरनल हेमरॉइड्स में पेन होगी या नहीं होगी? नहीं होती, क्योंकि वो बहुत ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वहाँ कोई नर्व नहीं होती। और इनकी नर्व सप्लाई कौन सी होती है जो पेन कॉज करवा रही होती है? कौन सी नर्व है जिसे पेन कॉज करवाती है? इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, जो ये पेन कॉज कर रहा होता है। या पुडेंडल नर्व भी S2 to S4 तक होता है पुडेंडल नर्व, ठीक है। अब आप बताएं वायरल हेपेटाइटिस कौन से लीवर के जोन में मोस्ट कॉमनली होता है? जोन 1, 2, 3। 1। डायरेक्ट हर्निया कहाँ प्रेजेंट होता है? मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स या लेटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स? मीडियल होता है। और इसके लेटरली कौन सा हर्निया होता है? इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, ये भी हमने कर लिया है।
कोलिसिस्टोकाइनिन किस सेल से रिलीज होती है? अच्छा, जो ये वाला टेबल है ना सारा, पेज नंबर 378 और 379 वाला, इसमें से बहुत एमसीक्यूज आते हैं, बहुत सारे, ठीक है। अच्छा, जो जीआईटी के अंदर या ड्यूडेनम और जेजुनम के अंदर जो के सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो किस चीज़ को रिलीज कर रहे होते हैं? के सेल्स। अच्छा, इसके ऑप्शन दे देती हूँ। ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन लाइक पेप्टाइड, सिक्रेटिन, मोटिलिन या वीआईपी। जीआईपी आप उसे कह सकते हैं, या गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है। अच्छा, ये सारी इसके अंदर ना एक डिसऑर्डर सिंड्रोम होती है, उसे कहते हैं WDHA सिंड्रोम। वो किस हार्मोन की वजह से होती है? सिक्रेटिन, जीआईपी, मोटिलिन या वीआईपी या नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से? वीआईपी की वजह से, ठीक है। WDHA के अंदर क्या आ जाता है? वाटरी डायरिया, हाइपोकैलीमिया और एक्लोराइडिया, ठीक है। रिलैक्सेशन ऑफ पेरिस्टालसिस कौन करवाता है? सिक्रेटिन, जीआईपी, मोटिलिन, वीआईपी, नाइट्रिक ऑक्साइड या ग्रेलिन? नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। प्रोटीन की डाइजेशन कौन करवाता है? गैस्ट्रिक एसिड, इंट्रिंसिक फैक्टर, पेप्सिन या बाइकार्ब्स? प्रोटीन की डाइजेशन, अच्छा आपने इसका प्रिसाइजली आपने चूज करना है पेप्सिन को, ठीक है। और विटामिन B12 के साथ कौन सी चीज़ अटैच करती है? गैस्ट्रिक एसिड, इंट्रिंसिक फैक्टर, पेप्सिन, बाइकार्ब्स? ठीक है, अच्छा ये हमने कर लिया है। ट्रिप्सिन को ट्रिप्सिनोजिन में कौन सी चीज़ कन्वर्ट कर रही होती है? एंटेरोकाइनेज। आयरन की एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है? ड्यूडिनम में, आइलियम में, जेजुनम में, किस में होती है? ड्यूडिनम के अंदर। और फोलेट की एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है? स्मॉल बाउल में या जेजुनम में। और विटामिन B12 इज एब्जॉर्ब्ड इन फिस्ट आयरन ग्रो, ठीक है, हमने इसका रिमोट लिखा है टर्मिनल आइलियम के अंदर, ठीक है। पायर्स पैचेस आर प्रेजेंट इन, किस में प्रेजेंट होते हैं ये? आइलियम के लैमिना प्रोप्रिया और सबम्यूकोजा के अंदर, ठीक है। अच्छा चलें, बस मेन तो आई थिंक हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। जीआईटी की फिजियोलॉजी के अंदर कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर ना हो? आई थिंक हमने इम्पोर्टेंट तो जीआईटी की फिजियोलॉजी ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका AA में भी बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्लियर है सबको जीआईटी की फिजियोलॉजी वाला टॉपिक? कोई क्वेश्चन यहाँ तक किसी के? फार्मा का, चलिए अच्छा मैं आपको फार्मा बता देती हूँ। अच्छा, फार्मा के अंदर ना जो ये पहला पेज है ना, पेज नंबर 405, ये पिक्चर को तो आप रहने दें, पिक्चर से आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। पेज नंबर 406 पे आ जाएं, ठीक है। जो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स है ना, ये आपने पहले इसके नेम करना है कि सिमेटिडीन होता है, फेमोटिडीन और निजाटिडीन, ठीक है। और मैकेनिज्म आपको पता है कि ये ब्लॉक करेगा हिस्टामिन H2 रिसेप्टर्स को, ठीक है। क्लिनिकल यूजेस भी आपको पता है, GERD में देंगे, पेप्टिक अल्सर में देंगे, ठीक है। और इसके साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा कोई प्रॉपरली नहीं दिए हुए, ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। PPIs के आपको सबको पता होगा, इसके नेम आपको आने चाहिए। मैकेनिज्म क्या करता है? पोटाशियम और हाइड्रोजन पंप को इनहिबिट कर देगा। एडवर्स इफेक्ट में इसमें क्या आ जाएंगे? क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल का इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, फ्रैक्चर का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, और मैग्नीशियम और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करवा देंगे, ठीक है। एंटासिड्स में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या करवाते हैं? सारे ऑल कॉजेज हाइपोकैलीमिया, जिसकी लास्ट लाइन लिखी हुई है सेकंड पॉइंट पे, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या कॉज करवाते हैं? कॉन्स्टिपेशन कॉज करवाते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या कॉज करवाएगी? डायरिया कॉज करवा देगी, ठीक है। बिस्मथ सुक्रोल्फेट आपको पता होना चाहिए कि ट्रैवलर्स डायरिया में देते हैं, और H. पाइलोरी के अंदर जो क्वाड्रपल थेरेपी होती है उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। मीजोप्रोस्टोल, ठीक है, ये प्रिवेंट करती है एनसेड इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर से, और ये क्या कॉज करवाती है? डायरिया कॉज करवा देती है, बस, ठीक है। 407 पे आपको ऑक्टीरियोटाइड का पता होना चाहिए कि जो
ब्लीडिंग होती है ना, हेमेटोमेसिस होता है, एक्यूट वेरिसिल ब्लीड उसमें हम दे रहे होते हैं, ठीक है। टर्ली प्रेशन इज ग्रेटर देन ऑक्टीरियोटाइड, ठीक है, आप सबको पता है। सल्फासेलाजिन का आपने साइड इफेक्ट याद रखने हैं, क्या करवाती है, रिवर्सिबल ओलाइगोस्पर्मिया कॉज करवा देती है, ठीक है। और लुपिरामाइड और डाइफेनॉक्सिलेट आपको पता है कि डायरिया के पेशेंट में देते हैं, इमोडियम के नाम से आती है, ठीक है। और इसका एडवर्स इफेक्ट आपको पता है कि कॉन्स्टिपेशन कॉज करवा देगी। अब जो इसका टेबल है ना, ये आपने तीनों अच्छे से कर लें, इसका टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है एंटीएमेटिक्स वाला, ठीक है। ऑनसेट के नाम से पहले जो ड्रग आती है क्या करवाएगी, 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एमसीक्यूज हमने एसके में भी किया हुआ है। और ठीक है, और इसके एडवर्स इफेक्ट में ये आएगा क्यूट इंटरवल की प्रोलोंगेशन कॉज करवाती है, सीरोटोनिन सिंड्रोम भी कॉज करवाती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा जो हम मेटाक्लोन के नाम से यूज़ करते हैं, मेटोक्लोपिरामाइड। ये D2 रिसेप्टर्स की एंटागोनिस्ट है, लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर टोन को इंक्रीज करवा देती है, ठीक है। कब देते हैं, ये इसका एमसीक्यूज लाजमी आता है कि डायबिटिक इंड्यूस्ड गैस्ट्रोपराइसिस के अंदर हम दे रहे होते हैं, ठीक है। बस ये दो ही इंपॉर्टेंट है। आगे ऑर्ली स्टेट जो है ये हम कब यूज़ करते हैं, वेट लॉस के पेशेंट्स के अंदर, ठीक है, जिनका वेट ज़्यादा होता है। इसका मिस यूज़ भी अक्सर लोग कर लेते हैं, ये इतनी बस क्लिनिकल यूज़ इसका पता होना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे जो है ना एंटी कॉन्स्टिपेशन, इसके बस आपको मेन पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन की ये कैसे कॉज करवा देते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, बस आपको इनके नेम आने चाहिए, ठीक है। फार्मा क्लियर है अब यहाँ तक, इसकी तो ईजी है, 2 पेजेस की है, 1 पेज की है। चलें ठीक है, कल आप लोगों ने बाकी सारा कर लेना एक दफ़ा, फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह GIT पैथोलॉजी, और कल स्टार्ट करेंगे SK 1 to 70 जो 5 सेक्शन 4 है इसका, ठीक है। अच्छा, उसका ऐसे कर लेते हैं कि सारे मतलब सारे पेपर रिपीट हैं, तो जो उसका फर्स्ट पेपर है उसके MCQs में चेक कर लेती हूँ कितने हैं। एक पेपर आप लोग कर लिया करें, मतलब मैं उसका वाइवा ले लिया करूँगी, और नेक्स्ट पेपर मैं आपको डिस्कस कर लिया, क्योंकि सारे रिपीटेड हैं। कोई ऐसा MCQs है जो आपको ना समझ आए तो वो फिर हम क्लास में डिस्कस कर लिया करेंगे। ऐसे ही होगा कि हमारा जल्दी कवर हो जाएगा, तो हम बाकी चीज़ें भी अच्छे से रिवाइज़ कर लेंगे जो बाकी SK है, ठीक है। तो इसके ऑलमोस्ट 164 MCQs हैं। आपने कल जो है ना इसका पहला जो पेपर है पेज नंबर 400, ये आप लोगों ने कल करना है, और पेज नंबर जो पेपर 2 है वो कल मैं आपको करवा दूँगी, और पेपर 1 का आप सिर्फ हम वाइवा लेंगे, ठीक है। इस तरह हमारे एटलीस्ट 5 डेज़ के अंदर ख़त्म हो जाएगी, ताकि हम बाकी SK के ऊपर भी फोकस कर सकें, ठीक है। चलें, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। यहाँ क्लास एंड करते हैं।